جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے سفارتی کوششیں کیا ہیں، کن کن محاذ پر پاکستان کشمیر کی آواز بلند کر رہا ہے، ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ السلام علیکم قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو عالمی سطح کے اوپر اس معاملے کو کس طریقے سے اجاگر کر رہا ہے اور گزشتہ 3 سال کے اندر ہم نے اس محاذ کے اوپر کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان مسلسل بھارت کے اس غیر قانونی یک طرفہ اقدام کی نہ صرف مذمت کر رہا ہے، اس کو بے نقاب کر رہا ہے، اور اس میں ہمیں کامیابی اس حد تک ہوئی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا جو عرصہ دراز سے بیک برنر پہ تھا، آج وہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیریوں کی اپنی قربانی سب سے افضل ہے۔ اب 3 مرتبہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آ چکا ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل میں اس پر بحث ہو چکی ہے، انسانی حقوق کی پامالی پر بہت سے ممالک نے تشویش کی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا چند روز پہلے اپنا یورپین پارلیمنٹ کے بہت سے ممبران نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے ابھی چند روز پہلے بہت سے خطوط کے بعد ایک نیا خط سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو اور صدر سلامتی کونسل کو لکھا کہ یہ تازہ صورتحال ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر کی۔ ہاؤس آف کامنز میں ڈسکشن ہوئی ہے اور نچوڑ یہ نکلا کہ آج ماحول ایسا بن گیا کہ بھارت کا جو موقف تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو دنیا نے رد کیا ہے، اور دنیا نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے، سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے، اور اس کو حل ہونا ہے یو این چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے عین مطابق۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو پریزیڈنٹ ہے جنرل اسمبلی کے اقوام متحدہ کی، وہ فرما رہے ہیں۔ ایک نمبر 2، ہندوستان کے اندر جو کشمیری مقبوضہ کشمیر میں بس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی دلی میں وزیر اعظم ان کو بلاتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ نظر ثانی کیجیے، 5 اگست کے اقدامات پر نظر ثانی کیجیے، ہمارا تشخص بحال کیجیے، ہمارا اسٹیٹ ہوڈ لوٹا دیجیے۔ اور جو ان کا بیانیہ تھا ہندوستان کا کہ وہاں ریل فیل ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، ٹورزم کو پروموٹ ہوگا، معیشت بڑھے گی، وہ رد ہو گیا۔ $6 ارب کا ان 2 سالوں میں مقبوضہ کشمیر کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ جو انسانوں کو اذیت پہنچائی ہے، جو ظلم ہوا ہے، وہ تو اس سے ہٹ کر اگر جو لوگوں کو سنہرے خواب دکھائے گئے تھے وہ چکنا چور ہوئے ہیں۔ بھارت بے نقاب ہوا ہے، ہندوتوا کی سوچ مسلط دکھائی دے رہی ہے، سیکولر انڈیا دفن ہوتا آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم کا موقف جو ہے پہلے سے۔ اچھا قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک نارملسی کی بات ہوئی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے مذاکرات کی بات بھی چلی، معید یوسف صاحب کی ملاقاتیں بھی کہیں ہوئی ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس سطح کے اوپر پیش رفت کہاں جاری ہے؟ ہماری طرف سے شرط عائد کی گئی کہ اقدامات واپس ہوں گے تو ہم بھارت سے بات چیت اور تجارت کے لیے تیار ہیں۔ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی قیادت کے رویے میں کچھ ذرا سی بھی تبدیلی کہ وہ پاکستان سے بات کرنے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، بھارت مجھے لگتا ہے ایک کشمکش میں ہے۔ جب وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بگڑتا ہوا دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اقدامات سے وہ کشمیری جو پہلے ان کی طرف مائل تھے وہ بھی دور ہو گئے، تو وہ چاہتا ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے۔ معاملات کیسے سلجھ سکتے ہیں؟ گفت و شنید سے سلجھ سکتے ہیں۔ گفت و شنید کے لیے ماحول سازگار کس نے کرنا ہے؟ بھارت نے کرنا ہے۔ معاملات کو بگاڑا کس نے؟ ماحول کو خراب کس نے کیا؟ بھارت نے کیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں چاہا کہ مسئلہ جنگ سے حل ہو، ہم تو کہتے ہیں پرامن طریقے سے گفت و شنید سے ہم معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم کشمیر کے کاز پر
कोई कश्मीरियों के साथ बेवफाई कर नहीं सकते। शाह मलकोई साहब, अभी मसूद खान साहब हमारे साथ थे, सदर आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा कि 3 मुख्तलिफ जगह होती हैं, सफारती लेवल पे खुद वो सफारतकार रहे हैं, और उन्होंने बात की, वहाँ तो बात हो रही है, सब कुछ है, लेकिन एक पॉलिटिकल यकचेती होती है किसी मुल्क की ऐसे इशू के अंदर। वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में हमें ख्वाब मिली है। मुझे आपका कमेंट चाहिए कि क्या हम जिस बचपन से जिस कश्मीर इशू पे मुत्तहिद थे, हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग, हम खुद भी थे, इस उम्र में तक थे, क्या आपको पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल यकजहती नजर आई यहाँ पर सियासी पार्टियों के दरमियान? देखिए किबला, हमने दयानतदारी से और ये साहब दयानतदारी से यकजहती के माहौल को उजागर करने की कोशिश की। हम मसले को पार्लियामेंट पे ले गए और हमने पूरी एक करारदाद पे पूरी ऑपोजिशन से कंसल्टेशन की और मुत्तफिका उनकी आरा को शामिल करके मुत्तफिका करारदाद पास की 2 मरतबा, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। हमने लीडरशिप को दावत दी, दफ्तर खारजा में उनको ब्रीफ किया। आज़ाद कश्मीर की तब क़यादत थी अपना फारूक हैदर साहब के पास, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वज़ीर आज़म। उनको कई मरतबा दफ्तर खारजा बुलाया, उनकी स्टैंडिंग कमेटी के सामने, जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, उसके सामने मौक़िफ़ रखा। हद्दुल वसा कोशिश की कि लीडरशिप को, मैंने इस पे बिलावल भुट्टो को, बिलावल जरदारी को और शहबाज शरीफ साहब को खत लिखे कि इस मामले में हम चाहते हैं कि एक बाय पार्टिजन कंसेंसस होना चाहिए और ये पाकिस्तानी कौम की जरूरत भी है और कश्मीरियों की तवक्को है आपसे। जब आप यहाँ कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें कोई दरार दिखाई दे, उनमें मायूसी फैलती है, ऐसा ना कीजिए। बदकिस्मती से उनकी तरफ से वो मुस्बत जवाब जो मैं तवक्को करता था वो नहीं आया। बिलमूम वो कहते हैं इस मसले पे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा अगर ये मौक़िफ़ है। लेकिन अभी जो वहाँ हालिया इंतखाबात हुए, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, बहुत गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। कश्मीर फरोशी, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे, कश्मीर को सूबा बनाने की बात सौदा कर सकता है। मुझे बताइए, जैसे आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, कश्मीर के मतलब मुहाफिज, उस नजरियाती असासे के मुहाफिज, किसमें जुर्रत है सौदा करने की? कोई सोच सकता है? मैं तो कहता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर इस माहौल में सोच भी नहीं सकता। क्यों करेगा ये ऐसी किस्म की बेवफाई, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की जरूरत क्या है? और इससे करके आपको हासिल क्या होगा? सिर्फ सियासत, और वो भी हासिल ना हुई। अच्छा कुरैशी साहब, एक हमें माजी में नजर आया कि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर के एक पार्लिमानी वफूद को बाहर भेजा जाता था, तमाम सियासी पार्टियों के अरकान सेनेट, कौमी असेंबली उसमें शामिल होते थे और कश्मीर के ऊपर लॉबिंग होती थी। गुज़िश्ता 2 सालों में हमें ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आई, इसकी क्या वजह है? क्यों रिलेक्टेंट है इस मामले में? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। हमने उसके लिए प्लान भी बनाया था, मशावरत भी की थी, बदकिस्मती से पूरी दुनिया कोविड की नजर हो गई। सफर पे पाबंदी, वीजों पे पाबंदी। अब आप देखें, जो जायज है, जो बेचारे मुलाजिम है, बच्चे तालीम के लिए नहीं जा सकते, क्वारंटीन करना पड़ता है। अभी जो बरतानिया ने किया है, हमें रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। एक शहरी को जो वहां जाना चाहता है उसको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करनी पड़ेगी, 2285 पाउंड जेब से अदा करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस माहौल में कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास नहीं हुए, हत्ता के हज नहीं अदा कर सके लोग। ये तरह माहौल तो देखिए आप। अच्छा कुरैशी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा कश्मीर से हटकर है। बात यह है कि अफ़गानिस्तान का मामला भी गर्म है और जो सूरत हाल चल रही है, ऐसे माहौल में हमारे जो मामले ख़ुसूसी हैं, मोईद यूसुफ साहब का इंटरव्यू, वो बड़ा इसके डिस्कशन के अंदर है कि बाइडन साहब ने फ़ोन क्यों नहीं किया इमरान खान साहब को, और फाइनेंशियल टाइम वाला इंटरव्यू। तो क्या हमें क्यों इंतज़ार है बाइडन साहब हमें फ़ोन करें और क्या बात करें? मैं अर्ज करूँ, देखिए, अगर नहीं किया तो कोई कयामत नहीं आई। सही बात है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हशाश बशाश है। आप मुस्कुरा रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रही हैं, कोई ऐसी कयामत नहीं आई, कोई आपका खाना पीना बंद नहीं हुआ।
देखिए, हम अफगानिस्तान में जो करना चाहते हैं हम अपने लिए करना चाहते हैं, अपने खित्ते के लिए करना चाहते हैं, अपने अफगान भाइयों के मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए नहीं करना चाहते, हम अपने हालात को बेहतर करना के लिए चाहते हैं। अमेरिका अगर बात करता है तो उसके मफाद में है बात करना, और अगर अमेरिका बात नहीं करता तो अपना नुकसान करता है। अच्छा कुरैशी, ये बताइएगा अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है हमसे, क्या उसने मांगा है जो हमने नहीं दिया और इतना नाराज बैठा कि फोन भी नहीं कर रहा, क्या वजूहात है? मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नाराज बैठा है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी उनके जो वजीर खारजा हैं उनसे 2 मरतबा मेरी गुफ्तगू हुई है, उनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, हमारे इंटेलिजेंस लेवल पे राब्ते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकातें हुई हैं, तो मैं इसको नाराज तो नहीं कहूंगा। हाँ, अब ये है कि आप और कुछ कर दो और कुछ कर दो, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने मफाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम क्या चाहते हैं इस वक्त, अमेरिका और हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, वो क्या है, वह अमन हो जाए, वो क्या है, मुज़ाकरात आगे बढ़ जाए, वह खून खराबा बंद हो जाए। हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो हमेशा चाहेंगे, लेकिन हम ये भी कहते हैं स्पॉइलर मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर भी स्पॉइलर बैठे हैं, और हिंदुस्तान जो है वो पाक में बैठा है, वो तो उसकी तो आए दिन किसी न किसी उसको जरूरत है कि मामला बिगड़े रहे वहां। अच्छा, आपने स्पॉयलर्स की बात की, और एक हम आप बात कहते रहे कि वसीउल बुनियाद हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर बननी चाहिए, पाकिस्तान की ये पॉलिसी है, लेकिन वो जो वसीउल बुनियाद हुकूमत में शामिल जो अनासर हैं मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हरसराई करते रहते हैं, इल्जामात लगाते रहते हैं, फिर ऐसे लोगों को फिर हम क्यों हमायत करते हैं कि वो शामिल हों उस अफगान हुकूमत के अंदर जो हमें पिछले सालों में करते रहे। एक और चीज मैं थोड़ी सा ऐड कर सवाल के अंदर, कि जो लोग अफगानिस्तान के जानते हैं ट्रैवल सेटअप को, वहां वसीउल बुनियादी का तस्वर जो है वो कम से कम 1000 साल से तो कहीं नजर आया नहीं है। हमेशा जो ताकतवर होता है वही गलबे पे आके हुकूमत करता रहा है वहां। जी देखिए, बिल्कुल आप तारीख का हवाला दे रहे हैं, और मैं आपके इस नॉलेज को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, अर्ज ये है कि वहाँ हुकूमत के अंदर भी माकूल लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में अफगानिस्तान का फायदा है। मैं खुल के कहता हूँ, उनके जो वजीर खारजा है, मेरी उनसे जब भी गुफ्तगू हुई है बड़ी मुनासिब हुई है, मुस्बत हुई है, और उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिस पर मैं उंगली उठाऊं या एतराज करूं। उनमें मेरी अभी हालिया दिनों में जब मैं गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, मेरी उनके जो पीस काउंसिल के सरबराह है डॉक्टर अब्दुल्ला, उनसे मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई, कोई उनने हाँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बयानात भी आप सुनते हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो गुफ्तगू की है वो भी आप सुनते हैं, लेकिन बिल अमूम जो है अफगानिस्तान के लोग ये नहीं सोच रहे। अफगानिस्तान के लोग समझते हैं, जो जी शऊर तबका है वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में उनका फायदा है, नुकसान नहीं है। पाकिस्तान उनकी बेहतरी चाह रहा है। हम क्यों चाहेंगे वहाँ खून खराबा हो, हम क्यों चाहेंगे? हमारी तो जो जियो इकोनॉमिक्स की हमारी सियासत है और हमारी जो पॉलिसी है उसमें अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमें रसाई मिलेगी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में अमन होगा, अफगानिस्तान में अमन होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया शामिल कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।